Hello everyone. So here I am Javed. Uh, this is one of the most important initiative which has been taken by our school authority, and now we are trying to come on this platform, on this digital platform to uh, teach and learn. So in economics, the next chapter which we are going to discuss, with the help of this app, I'm trying to compile a video for you. I hope it will be much more beneficial. So the next chapter, which is in our syllabus, is money and credit. So with the help of this ppt, I'm trying to make it understand to you. So let's start. What is actually mean by money? The name of your chapter is money and credit. The two components, it consists of two components, money and credit. So one by one, we have pick up both the components, money and then credit, and try to understand the whole concept of money and credit. So let's begin. What is actually mean by money? As you could see on the screen, I have shared the screen. As you could see, the definition of money, which is given here. Money is any good that is widely used and accepted in transaction involving the transfer of goods and services goods and services from one person to another. So money is any good means anything which is having a certain value, market value, and that is widely used means used by everyone and accepted. These two or three words are the um, sole explainer of this whole concept. Fine. In the next slide, when we are going to discuss about the barter system, then you are come to know the actual definition and actual difference, sorry, in between money and barter system. Barter system which had been performed years ago when the money was not in picture. So money is any good that is widely used and accepted in transactions involving the transfer of goods and services from one person to another. Clear? So मनी का सिंपल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सबके द्वारा एक्सेप्ट की जाए ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी कि लेन देन के लिए, इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें आप एक सामान किसी दूसरे से एक्सचेंज कर सकें या सर्विसेज एक्सचेंज कर सके, शेयर कर सके. फाइन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एनी सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो मीडियम का वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीडियम, मनी इज एक्चुअली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स वो मीडियम, वो जरिया जिससे कि हम एक्सचेंज करते हैं किसी चीज को, किसी से लेना, किसी को देना. ठीक है, तो वो एक मीडियम है, एक जरिया है, पैसा, मनी. अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इसमें कॉइन्स हैं, पेपर मनी है, एंड डीडी, डिमांड डिपॉजिट. ये डिमांड डिपॉजिट के बारे में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में आगे चल कर डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको डीडी की एक पिक्चर भी दिखाई जाएगी. डीडी वैसे आप लोगों ने, जो लोग बैंक्स वगैरह जाते होंगे, वो उन्होंने देखा होगा डीडी का फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है, उसका उसकी वर्किंग कैसे चलती है. might have you have been experience in banks if you visited. Okay, so this is all about the definition of money. I hope it is clear. Now come to the next slide.
So the next thing is barter system. Clear? So as you could see the picture barter system, the drawing which has been depicted here. So barter system के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। जब मनी का यूज नहीं होता था तो एक सिस्टम फॉलो किया जाता था, उसे कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में सिंपली चीज़ों को एक्सचेंज कर दिया जाता था आपस में। अगर मेरे पास राइस है और मुझे सपोज मुझे शूज़ की ज़रूरत है, तो उसको एक्सचेंज कर लिया जाता था। मैंने अपना राइस किसी दूसरे को दे दिया और उसने मुझे उसके बदले में शूज़ दे दिए, ठीक है। लेकिन इससे चल के आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम टोटली फेल हुआ और फिर जो है वो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। सो गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट goods are exchanged without use of money. Clear? जब बिना मनी के पैसों को जो है वो सॉरी चीज़ों को जो है वो एक्सचेंज किया जाता था, तो उसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का सिंपल मीनिंग यही है, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। डबल कोइंसिडेंस का सिंपल मतलब यही है कि just wait please. There is some problem. Okay, fine. So double coincidence का मतलब ये है कि जिसमें एक चीज को दूसरे से एक्सचेंज कर लिया जाता था, ठीक है। As you could see in this picture, this man is having uh, one cock hen, or this is having a basket of fruits, and both of them are having uh, a mutual agreement that both of them are going to share each other with their goods. These are goods, सामान है ये, ठीक है। Now there are certain limitations in barter system also. Certain limitations तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा ही limitations थे इसके, इसकी वजह से ये flop हुआ। बट आपको बहुत ज़्यादा तो डिटेल में भी नहीं जाना है। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। Limitations of barter system. The first one is lack of double coincidence of wants, lack of common measure of value and lack of store of value. इसके limitations आप नेट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे limitations मिल जाएंगे, but the problem is उस सारे limitations आपको समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो है हमारा lack of double coincidence of wants, जिससे मैंने कहा कि इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल में जैसे आपने देखा कि इसमें एक के पास जो है वो हैन है और दूसरे के पास जो है वो बास्केट ऑफ फ्रूट्स है। अब मुझे एक्सचेंज करना है, सपोज करिए मुझे हैन के बदले कपड़े चाहिए होते हैं, या मुझे कपड़ों की ज़रूरत है और मैंने जो है वो मेरे पास जो है वो हैन है, ठीक है। लेकिन सामने वाले के पास जो है वो जिससे मुझे एक्सचेंज करना है उसके पास क्लोथ्स नहीं है, उसके पास फ्रूट्स है या कुछ कोई और चीज़ है जो कि मैं चाहता नहीं हूँ एक्सचेंज करना। आई डोंट वांट टू एक्सचेंज माय कमोडिटी with the another one because he or she is not having that commodity which actually I wants. वो जो एक्चुअल में मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती थी कि जो डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे जनरली फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मैच नहीं करता था। क्लियर? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन रहा। मतलब कि दो कमोडिटी जो हमें एक्सचेंज करनी है, उन दोनों की जो वैल्यूज थी वो बराबर नहीं हो सकती थी। क्लियर?
अब मेरे पास अगर hen है और सामने वाले के पास फ्रूट्स हैं तो दोनों के की वैल्यू अलग अलग है। तो उन दोनों को मेजर करने के लिए कोई एक ऐसा कॉमन मेजर नहीं था कि हम कैसे इन दोनों को बराबर समझें। मेरे पास जो सामान है वो दूसरे वाले के सामान से कैसे इक्वेट हम करें, तो वो कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं था उस समय। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। क्लियर। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो थी आपकी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के बाद जो थर्ड प्रॉब्लम थी, सॉरी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का भी सिंपल मतलब, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि अ, उस पर्टिकुलर चीज की कोई अपनी खुद की वैल्यू नहीं थी। यानी कि जैसे अगर आपने अभी अपने बैंक अकाउंट में अगर आपने कुछ अ, पैसे सेव करके रखे हैं तो उस पैसों की एक सर्टेन वैल्यू है कि 1,000, 2,000, 10,000। ठीक है। तो जो पहले वो जो गुड्स थे उनकी कोई वैल्यू तो उस समय डिटरमाइन हो नहीं सकती थी, तो इस वजह से उनको स्टोर करके रखना भी कोई भी उसमें कोई फायदा नहीं था। स्टोर करके रखने से उनको कोई फायदा नहीं था क्योंकि उनकी कोई कोई वैल्यू मेजरमेंट था नहीं कि उसका उसको कैसे मेजर करेंगे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इज वन अनदर लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि अ, आप उसको लॉन्ग टर्म्स में किसी भी तरह का, डिफर्ड पेमेंट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अ, जैसे लोन वगैरह हम लेते हैं, तो लोन लेते हैं तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसको लोन लोन जो देते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट के लिए देते हैं। एक सर्टेन पीरियड के लिए देते हैं कि इतने मंथ के बाद या इतने साल के बाद आपको उसको रीपेमेंट करना है और उसमें जो भी इंटरेस्ट लगेगा या जो भी चार्ज लगेगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जब दो चीजें आपस में एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनकी एक तो स्टोर वैल्यू नहीं थी। क्लियर। उनकी कोई स्टोर वैल्यू नहीं थी, यानी कि हम उसको स्टोर करके रखें तो उसमें कोई फायदा इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी उनका कोई वैल्यू मेजरमेंट ही नहीं है, तो उसको स्टोर करके किस लिए रखा जाए। ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, तो उसी वजह से डिफर्ड पेमेंट भी नहीं था, यानी कि आप उसको किसी चीज को लोन के तौर पे नहीं ले सकते थे। है ना, कि मैंने आज इसको सपोज करिए मैंने फ्रूट्स को रख लिया या मैंने किसी को दे दिया और कुछ साल के बाद उसका डबल होके या ट्रिपल होके या कुछ इंटरेस्ट के साथ वो हमें मिलेगा उसका रिटर्न। ऐसा नहीं था, इस तरह का कोई सिस्टम उस समय नहीं था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी पिक्चर में आ गया था तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे हुआ, यानी कि उसको मीडियम कैसे बनाया गया एक चीज के लिए दूसरी चीज, मतलब पैसा दे के किसी दूसरी चीज को खरीदना, एक्सचेंज करना, ये कैसे पॉसिबल हो रहा था। सो एज यू कुड सी इन दिस स्लाइड, the first point is, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of bonds. ठीक है। मनी ने एक इंटरमीडिएट का काम किया, यानी कि बायर और सेलर के बीच में जो चीज इंटरमीडियरी का काम कर रही है वो मनी था। यानी कि मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं शॉपकीपर के पास गया, और शॉपकीपर के पास जब मैं गया तो वो सामान वो मुझे क्यों देगा और कैसे देगा, उसके अगेंस्ट में उसको कुछ चार्ज करना पड़ेगा। तो उसका काम जो है वो मनी ने किया। मनी इज बीइंग एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन exchange process, it is called medium of exchange। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सिंपल मतलब वही है कि जब किसी चीज के थ्रू या जब किसी चीज को बीच में रख के इंटरमीडिएट बना के हम अपना काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसे हम इंटरमीडियरी कहते हैं। क्लियर। एज यू कुड सी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गाड़ी लेनी है
पैसे देंगे आप एजेंसी पे जाके तो आपको गाड़ी देगा। तो बीच में पैसा ही है, आपके बीच में और सेलर के बीच में तो पैसा ही काम कर रहा है ना। तो जो बीच वाली चीज जो लिंक करती है एक को दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं इंटरमीडियरी। नाउ रोल्स ऑफ मनी। मनी का रोल क्या है जो आपने ऊपर पढ़ा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से काम करता है मनी। मेजर मेजर ऑफ वैल्यू के उस फॉर्म में काम करता है। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्म में काम करता है। यानी कि वो सारे लिमिटेशंस जो वहाँ पे हमने इसके लिमिटेशंस के तौर पे पढ़े थे, वो अ, अब मनी जो है वो एज अ रोल के तौर पे मनी के हम उसको देख सकते हैं। क्लियर? सो for today I think this much is sufficient. In the next video I'm trying to cover the next topic related to this chapter, money and credit. Thank you.